Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 8th of September 2023. From today's newspaper, these are the topics which we'll be discussing. Number one is from yesterday's newspaper. ये टॉपिक जो है कल के पेपर से मिस हो गया था. That most Indians who consume the news online like to watch, not to read. So this is basically related to the content of the news, the changing the pattern of the citizens or the people all around the globe, all around our country. What are their priority with respect to the newspapers? Are they still preferring to read the news from the hard copy of the newspapers which they're getting in the morning? Or they are preferring an online platform, or in that online platform, are they preferring to read it or to watch it via some YouTube channel or some online sites? Then second, we'll be talking about the Black Sea Green Initiative. The third is about the Africa as a member of G20. Then the loss of language, there's complete a detailed editorial is given with respect to this topic, that is the loss of language. Then finding the Seoul in the Indo-Pacific. Seoul is the capital of one of the country in the Southeast Asia. This is about the South Korea or the North Korea. This is up to you. You have to find it, write down in the comments. Okay. So before we begin our main discussion, this is our channel, IAS Cafe. Please do subscribe it. If you're really liking our video, like and share to as many students as possible. Now, coming to the main discussion. The number one is about most Indians who consume the news online like to watch it, they do not like to read it. तो ये हम किस basis पे बोल रहे हैं? So there is a recently a report released named as Digital News Report by the Reuters Institute. Okay? So recently 2023 की एक report आई है in the name of Digital News Report by Reuters Institute. इसके जो indicators है, ये जो आपके पास report indicate कर रही है वो साफ बता रही है कि there is a shift among the online news consumers in India. अगर आप इंडिया में 5 या 10 साल पहले की बात करो तो वहां पे न्यूज चैनल्स के लिए या फिर जो न्यूज लोग को लेनी होती है उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसका यूज बहुत कम था. बट अभी recent scenario में most of the people are preferring to have an online platform to gain the news. They are trying to get subscription, the annual subscription, the yearly subscription instead of getting hard copy in front of their home every morning. So this is basically the core gist of this the report, which indicates that there is a shift among the online news consumers in India who are increasingly turning to search engines, mobile news aggregators as the main source of news, thus moving away from the websites of the traditional outlets. Now, the report underscores that among the Indians who engage with the news online, the majority favor watching or listening over reading the news. अब इसमें भी एक twist है. The first criteria what we discuss is that people are shifting from the traditional source of newspapers or the news towards an online platform. Now, in that online platform also, people are not preferring to read it. They are preferring to watch it. कि कोई एक जना आए और उस न्यूज के बारे में कुछ बता दे, वो बोल दे, हम सिर्फ सुन लेंगे उसको. So the first shift was with respect to the traditional way of the source, from the traditional source to the online platform. And in that online platform, the writer wants to focus, the writer wants to draw your focus towards what? That the main focus is not towards the reading of the news, the people are shifting towards the listening of the news thing. If we compare this thing, the scenario with an international platform, if I talk about the Scandinavian countries, that means the countries to the north of the Europe, a well-established new brand continue to enjoy the robust direct engagement with consumers for the online news. So in these markets, people still widely use the social media platforms, but mainly for the other activities rather than the news consumptions. देखो, पहले हमने इंडिया का सिनेरियो देखा.
Now we are comparing this Indian scenario with a global platform focusing on the Scandinavian countries. तो यहाँ पे राइटर ने इस पूरे रिपोर्ट का जो एनालिसिस है उसको कंपेयर किया है with the Scandinavian countries. So these are the countries located in the north of your Europe continent, right? So well established जो new brands है, they still continue to enjoy the robust direct engagement with the consumers for the online news. और ये जितने भी मार्केट्स अभी हो रहे हैं, people still widely use social media platforms but mainly for other activities rather than the news consumption. तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा कंट्रास्टिंग है कि यहाँ पे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उनका यूज बढ़ तो रहा है बट बाकी चीजों के लिए ज्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द न्यूज चैनल्स. सो इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इन द रीजन्स, अब यहाँ पे बाकी के कुछ रीजन के साथ कंपेयर करते हैं. एशिया है आपका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सोशल मीडिया रिंग सुप्रीम एज द गेटवे टू द न्यूज. तो ये सारी जो कंट्रीज है जैसे कि अफ्रीका है, अमेरिका है, आपके पास एशिया जैसी कंट्रीज रीजन है, यहाँ पे सोशल मीडिया जो है प्रियोरिटी पे है अगर उनको न्यूज चैनल्स के कोई रास्ते ढूंढने, कोई सोर्स का कुछ बात करनी है तो मेकिंग द ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन थर्ड पार्टी ट्रैफिक फॉर ऑडियंस रीच. यानी कि आपके पास कोई एक न्यूज़पेपर है जो कि ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ न्यूज है, अब उस न्यूज को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपको थर्ड पार्टी की जरूरत है, यानी कि यू नीड अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अ थर्ड पार्टी सिस्टम और अ सोशल नेटवर्किंग साइट और एनी काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? द ऑनलाइन थिंग. तो एडिशनली इन द स्पेसिफिक एशिया पैसिफिक मार्केट सच एज, अब एशिया के अंदर ही अगर मैं और स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज की बात करूं जैसे कि जापान इज देयर, द कोरिया इज देयर, वहां पे आज भी जो ट्रेडिशनल न्यूज चैनल्स जैसे कि साइट्स होती थी, सॉरी, याहू है, नेवर है, उनका यूज अभी भी हो रहा है. मीनवाइल इंडिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज, इंडोनेशिया इज अ कंट्री इन योर साउथ ईस्ट एशिया. सो अगेन कल भी मैंने ये पूछा था, विच स्टेट divides the Indonesia in two parts, that is the northern and the southern part. You have to name the state. Coming to the main discussion again, that meanwhile in the India and Indonesia, the role of mobile news aggregators as primary news sources is on the rise. तो इंडिया या इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है वहां पे मोबाइल के थ्रू जो न्यूज एग्रीगेट्स है उनका नंबर बढ़ रहा है. ऐसी कंट्रीज जहां पे रीडिंग का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, where the people, where the children, where the citizen of the country are being forced to focus on reading, not exactly forced, उनको बताया जाता है, उनका जो फोकस है रीडिंग की तरफ ज्यादा करवाया जाता है. ऐसी कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड है, विच इज ऑल्सो द हैप्पीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे 80% जो है लोग अभी भी पढ़ना पसंद कर रहे हैं, यानी रीडिंग द न्यूज ऑनलाइन. दे डोंट प्रेफर टू लिसन द न्यूज ऑनलाइन. ठीक है. सो कन्वर्सली इंडिया और थाईलैंड में 40% पीपल सेड कि उनको न्यूज देखना पसंद है. So even more dramatically, over half, that is 52% of the respondents in Philippines favor the video news consumption. तो पूरे ग्लोब में यहाँ पे राइटर ने आपको तीन कंट्रास्टिंग सिनेरियो जो है वो बता दिया. सबसे पहले उन्होंने ऐसी जगह के डेटा आपको दिए जैसे कि फिनलैंड है, यूके है, जहाँ पे 80% जनता आज भी ऑनलाइन जो है न्यूज पढ़ना पसंद कर रही है. फिर कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, यहाँ पे न्यूज को सुनना पसंद किया जा रहा है. Then there are countries like the Philippines. People in the Philippines favor to watch the video consumption on the online platform. तो ये जो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट है has also identified alarming declines in both the consumption and dissemination of the news in India. तो यानी जो ट्रेडिशनल न्यूज चैनल है आपके पास, जो टीवी में पहले आते थे, दूरदर्शन जैसे चैनल्स है, उनका पूरी तरह से एक डिक्लाइन जो है, ये कंसर्निंग जो डेटा है वो भी इस न्यूज रिपोर्ट के साथ सामने आ रहा है. सो द डेटा शो दैट एक्सेस टू द ऑनलाइन न्यूज has sharply fallen by 12 percentage points between 2022 and 23, a trend that is particularly pronounced on social media platforms which saw an 11-point decline. So these platforms have traditionally been primary news sources for a younger demographic. अब हम टीवी की तरफ आते हैं, जो ट्रेडिशनल जो न्यूज चैनल्स थे. टेलीविजन
एक ऐसा एंटरटेनमेंट का सोर्स है जो आज भी एक बहुत ही ज्यादा वाइड ऑडियंस को कमांड करता है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन. अगर कोई बॉलीवुड मूवी है, थिएटर में रिलीज हो रही है, आना उसको लास्ट में टीवी पे ही है. जनता उसको जो रीच नहीं कर सकती थिएटर में, उनको टीवी में देखना है. राइट. इफ यू टॉक अबाउट एनी कॉमेडी थिंग्स, टीवी है आपके पास. न्यूज चैनल्स यू हैव टीवी, स्पोर्ट्स चैनल्स यू हैव टीवी. So television is something which is commanding a wide audience at present. It was in the past time, and it was in the that time as well. Has not been immune to this trend, experiencing a 10-point dip in the viewership among our sample group comprising mainly younger and urban individuals. So this decline in the news engagement can be partially linked to diminishing influence of COVID-19 pandemic, particularly since lockdown measures were relaxed in April last year. देखो, आप इन दिनों में यू रीड एनीथिंग, आप कोई भी यूपीएससी के सिलेबस से, कोई भी कंटेक्स्ट से कोई भी आप न्यूज पढ़ी, उसमें आप कोविड का इफेक्ट कहीं से भी डाल सकते हो. राइट. यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ इफेक्ट कि जो कोविड की वजह से है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, कोविड की वजह से, उसकी वजह से मार्केट डाउन हो गया, कोविड है उसकी वजह से ये हो गया. तो कोविड जो आपके पास एक ऐसा पेंडेमिक आया था, जो लॉकडाउन वहां पे हुआ था, तो उस टाइम पे ये ऐसा सिनेरियो था पूरी दुनिया के लिए कि आप अपने आंसर राइटिंग में इसको कहीं पे भी यूज कर सकते. इन इंडिया में ओवरऑल जो न्यूज का जो ट्रस्ट है वो एक कांस्टेंट रहा है 38%. 2021 से 23 का अगर डेटा देखें, सो इट इज अ कांस्टेंट. राइट. तो एक छोटा सा ये न्यूज था विद रिगार्ड टू द न्यूज प्लेटफॉर्म. और ये रिपोर्ट आप याद रख सकते हैं. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना ओपिनियन बेस्ड मेंस का क्वेश्चन जो है उसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं विद इट. ठीक है. Now coming to the second topic, that is a Black Sea Green Initiative. ब्लैक सी, ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है भाई. ब्लैक सी, कैस्पियन सी, which are the countries bordering the Caspian Sea, what are the countries bordering the Mediterranean Sea, Black Sea, right? Important जो states है. तो ब्लैक सी जो है, देखो मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बनाया. आई जस्ट टेक यू टुवर्ड्स एन इमेजिनेशन, बिकॉज मैंने आपको बोला था आपको वर्ल्ड मैप करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की जो न्यूज है वो समझ आने वाली. तो आपका अभी तक मैं सोच रही हूँ कि कुछ बेसिक क्लियर हो गया होगा वर्ल्ड मैप से. उस बेसिस पे लेट्स गो टुवर्ड्स द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव. ये आपके पास वर्ल्ड मैप है. अभी सब अपना एटलस खोल लीजिए तुरंत. यू कैन प्रिटी वेल इमेजिन राइट नाउ. यू कैन गो टुवर्ड्स यूरोप. आपके पास जो यहाँ पे यूरोप है, आप वहां पे जाइए. यूरोप में आपको यहाँ पे रशिया दिखेगा, यहाँ पे आपको यूक्रेन दिखेगा, और यहाँ पे आपको एक सी दिखेगा. ये आपके पास यूरोप है, ये यूक्रेन है, रशिया है. यू विल सी अ सी दैट इज ब्लैक सी, यहाँ पे आपको दिखेगा. और ब्लैक सी के चारों तरफ कुछ कंट्रीज है. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ब्लैक सी है, तो दिस इज योर ब्लैक सी. यहाँ आपके पास कहीं ना कहीं यूक्रेन है, यहाँ आपके पास कहीं ना कहीं रशिया, और यहाँ आपके पास क्रिमियन पेनिनसुला है. तो इस ब्लैक सी जो है, इसके पास तो यूक्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जिसके थ्रू ये ट्रेड कर पाता था, एक्सपोर्ट कर पाता था. ब्लैक सी के थ्रू, मतलब अपने जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वहां से शिपिंग के थ्रू ये एक्सपोर्ट कर पाता था. या रशिया भी करता था. लेकिन जो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसकी वजह से रशिया जो है इन पोर्ट्स के ऊपर, या फिर ये जो ब्लैक सी का जो रास्ता है, यहाँ पे ब्लॉकेड कर रहा है, ब्लॉकेड कर रहा था कि यूक्रेन यहाँ से कोई ट्रेड नहीं कर पाए. तो ये जो रशिया यूक्रेन का जो झगड़ा चला, उसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सपोर्ट को खतरा हुआ है, स्पेशली फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट, तो ये पूरे ग्लोबल के लिए डेंजर बात है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है. अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की ग्लोबल चेन हिल रही है, सामान कम आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. इन्फ्लेशन का सीधा फंडा क्या है? आप इन्फ्लेशन कैसे पढ़ते हो भाई? अगर टेक्निकल टर्म्स पे जाओ तो डिमांड इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, राइट. बट अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझो, सीधी सी बात है कि भाई अगर आपके पास क्या है, मार्केट में आपके पास हर बार 10 फोन जो है प्रोड्यूस होता है, 10 फोन या आप इस तरह से ले लीजिए. इन्फ्लेशन का सीधा फंडा पैसे समझिए, ये आपके पास इन्फ्लेशन है. ठीक है. अब इन्फ्लेशन क्या है कि भाई फैक्ट्री में कोई चीज बन रही है, रोज के यहाँ पे नमक की थैलियां है,
ये आपके पास डेली जो है एक फिक्स अमाउंट में बन रही है, और ये 10 रुपए की एक थैली आपको मिल रही है, एक पैकेट जो है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे, राइट? तो जब ये पैकेट आपको मिल रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। मान लो कि ये फैक्ट्री में आग लग जाती है या फिर कोई मशीन खराब हो जाती है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, पहले 6 बन रहे थे, अभी 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जनता तो उतना ही सॉल्ट डिमांड कर रही है ना भाई, मतलब डिमांड उतना ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट है यानी कि जो आपके पास प्रोडक्शन है वो कम हो गया। तो क्या करेगा ये बेचने वाला, इसकी क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा कि भाई जिसकी आपके पास श्रद्धा है, जिसके पास इतना पैसा है, ले जाओ। तो यानी कहीं पर अगर आपके पास कॉस्ट में गड़बड़ आ जाती है, जो प्रोडक्शन में गड़बड़ आ जाती है, तो क्या होता है, आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यानी पूरी वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब के अंदर आपके पास वो सामान पहुंच नहीं पा रहा है, तो यानी सामान नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या होगा, मार्केट में मंदी बढ़ेगा, सॉरी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या है, कॉमन कॉन्सेप्ट है आपके पास, राइट? अब जब आपको ये समझ आ गया है ब्लैक सी क्या है, तो इसको ठीक करने के लिए एक ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया था पिछले ईयर के ऑलमोस्ट ईयर अराउंड, और उस टाइम पे ये बोला गया था कि रशिया यूक्रेन इस पे कोऑपरेट करे। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं that as the world leaders gather in the Delhi on Friday ahead of the G20 summit, the United Nations Secretary General is on a mission to revive the Black Sea Grain Initiative. So the deal that facilitates the export of grain from Russia and Ukraine lapsed in July. तो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव था, ये जो डील था रशिया और यूक्रेन के बीच में, कि आप जो है यहाँ पे ये जो झगड़े के कारण ये जो एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम आ रही है इसको रोको, तो उसके लिए ये जो डील साइन करी थी वो पिछले जुलाई में खत्म हो गई थी, ठीक है, लैप्स हो गई थी। अब उस डील को रिवाइव करने की बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए ये न्यूज में आया है। तो ये जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है, it endeavors to tackle the escalating food prices emanating from supply chain disruptions because of Russian actions in the world bread basket. देखो भाई, रशिया ये ब्रेड बास्केट है, यूक्रेन वाले एरिया, ये आपके पास रशिया, ये सबसे ज्यादा फूड आपके पास यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो द डेट ब्रोकर्ड बाय, तो ये जो डील थी इट वाज ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड नेशन टर्की, 2022 में ये साइन हुई थी, जुलाई में ये लिप्स हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई अब इसका, इनिशियली स्टिपुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, देखो इनिशियली तो ये सिर्फ 2 महीने के लिए थी, यानी कि 120 दिन। द डील वाज टू प्रोवाइड अ सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर यूक्रेनियन एक्सपोर्ट। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ब्लैक सी है, या आपके पास क्रिमियन पेनिनसुला है, या फिर यूक्रेन है, या रशिया है, रशिया पे ब्लॉकेट कर रहा था कि यूक्रेन जो है यहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो इनको जो है कॉपरेशन के लिए, यानी यूक्रेन की जो एक्सपोर्ट है उसको एक सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करने के लिए ये जो डील है वो साइन हुई। सेंट्रल आइडिया वाज टू काम द मार्केट, ensuring an adequate supply of grain, thereby limiting the food price inflation. तो क्या यूक्रेन को कोई श्रद्धा, मतलब बाकी कंट्रीज की कोई खास फ्रेंडशिप थी कि यूक्रेन का साथ दे रहा था, नहीं। मेन आइडिया क्या था कि भाई हमको मार्केट में डिस्ट्रप्शन बचाना, इन्फ्लेशन ना हो जाए उसको हमको यहाँ पे बचाना है, ठीक है ना। कमिंग टू द रोल ऑफ द जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, दैट इज द जीसीसी। So if we talk about the role of Joint Coordination Center, that is GCC, the deal put in place, तो इस डील पे हमारे पास एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बना, जिसमें एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव था फ्रॉम रशिया, टर्की, यूक्रेन एंड यूएन फॉर ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन। तो इन्होंने क्या किया, what actually happened with this joint coordination center was all the commercial ships were required to register directly with the JCC। मतलब ये जो ब्लैक सी में जो पोर्ट से कोई भी अगर कमर्शियल शिप इस एरिया से जा रही है, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर, ताकि उन शिप्स का प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सके, इंस्पेक्शन कर सके, और एक सेफ तरीके से उसका पैसेज जो है यहाँ से हम करवा पाए। So inbound and outbound ships transit as per a schedule accorded by JCC post inspection. So this is done so as to ensure that there is no unauthorized cargo या फिर personal जो है चीजें शिप जो है यहाँ से जा सके, right? So why अभी important क्यों है Black Sea Green Initiative? तो जैसे हमने बोला, इन्फ्लेशन का जो कॉन्टेक्स्ट हमने समझा वही बेसिकली इसका कोर कंसेप्ट है,
that Ukraine is among the largest exporter of पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा wheat, maize, जो कॉर्न एक्सपोर्ट करता है आपके पास यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है, रेप सीड कॉर्न एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है, सनफ्लावर सीड ऑयल ग्लोबल. So, in access to the deep sea port in the Black Sea, enables to directly approach Russia and Europe along with the grain importers from the Middle East and North Africa. The initiative has also been credited for having made a huge difference to the global cost of living crisis. Food supply disrupt नहीं होना चाहिए. Clear है? Now coming to the next topic, that is, तो अभी लास्ट में हमने क्या देखा इसमें ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव में, यू मस्ट एंड मस्ट एमटीआर, यानी आपको रट जाना चाहिए ब्लैक सी जो है उसकी लोकेशन क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज जो है ब्लैक सी को बॉर्डर करती है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ यूक्रेन क्या है, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में क्या है, यूरोप की इस एरिया में कोई इंपॉर्टेंट स्टेट है तो आपको पता होना चाहिए. ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव was recently seen in the news is related to what? ऐसा क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है. ठीक है, अब आते हैं अफ्रीका एज अ पार्ट ऑफ G20. न्यू दिल्ली अफ्रीकन, देखो अभी G20 की समिट आज और कल, यानी कि आई थिंक 9 या 10 तारीख को, या तो आज या कल या परसों, ये 2 दिन है जब आपके पास G20 का जो एनुअल समिट है वो होने वाला है. ये देखो लिखा है यहाँ पे, दैट एनुअल समिट ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ 20 लार्ज इकोनॉमीज, ये होगी दिल्ली में सितंबर 9 और 10 को. तो अफ्रीकन यूनियन का जो मेंबरशिप है वो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है. आई एम सेइंग कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, दिस इज अ मिस्टेक, क्योंकि वहां पे सब ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं इस चीज के लिए. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी had written to the leaders of G20 member states in June to propose that African Union to be given full membership in this thing. तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे चीज है जिसमें रशिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि और रशिया ने इस चीज को काफी सपोर्ट किया. राइट नाउ जब ये कल डिटेल में मीटिंग होगी तो डिटेल एडिटोरियल्स आएंगे, देन विल बी गोइंग इन डिटेल ऑन दिस टॉपिक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लॉस ऑफ लैंग्वेज. यस, इट इज इंपॉर्टेंट. पॉलिटी में पढ़ना तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए, लक्ष्मीकांत उठाइए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है पूरा रट्टा लिया. लेकिन थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है तो आप खुद सोच के देखिए कि आप, if you're my audience and if you're from different state, आपको ये realize होगा, if you're from Rajasthan you must be speaking some Rajasthani Marwari language, if you're from Maharashtra you must be speaking Marathi, if you're from Gujarat you must be speaking Gujarati. So there was a time, you know, कुछ 5-10 साल पहले ऐसे टाइम था जब हर एक इंसान अपनी रीजनल लैंग्वेज को बोलता था, रिस्पेक्ट करता था, एंड इट वाज नॉर्मल. बट ग्रेजुअली जैसे ही अभी जो न्यू जनरेशन है वो एक ऐसी जगह पर शिफ्ट हो रही है विच इज अ प्लेस, विच इज अ प्लेटफॉर्म, विच इज अ रीजन ऑफ अ कॉमन प्लेटफॉर्म, तो लोग अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस को भूलते जा रहे हैं. तो इसमें स्टेजेस के बारे में राइटर कह रहा है कि एक स्टेज ये आया कि पहले लोग बाइलिंगुअल में शिफ्ट हुए कि भाई वो अपनी रीजनल लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं, उसके साथ इंग्लिश भी बोल रहे हैं कॉमन लैंग्वेज. फिर उन्होंने रीजनल लैंग्वेज की भाई हम बोल नहीं पा रहे, एक्सेंट नहीं आ रहा है मारवाड़ी का, गुजराती का, मराठी का, लेकिन हम समझ पा रहे, लेकिन हम इंग्लिश बोल रहे हैं. अब ये स्टेज आ गई है कि नेक्स्ट जनरेशन को ये लैंग्वेज के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये लैंग्वेज है क्या, दे आर जस्ट इनटू इंग्लिश और अ कॉमन लैंग्वेज. तो ये जो लैंग्वेज का एक्सटेंशन हो रहा है उसके बारे में राइटर यहाँ पे बोल रहा है दैट एनी लॉस ऑफ लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो यानी बट ऑल्सो लॉस इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड कल्चरल वेरिएशंस, ओपिनियन, व्यूज एंड नॉलेज. तो यहाँ पे लॉस ऑफ लैंग्वेज का क्या मतलब है, दैट किसी भी तरीका का ये जो लॉस है, ठीक है, उसमें सिर्फ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का ये नहीं कि भाई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी खत्म हो रही, उसी के साथ आपकी लैंग्वेज से जुड़ा कल्चर, ट्रेडिशन, वेरिएशंस, नॉलेज हो जा रहा है. मान लो कि संस्कृत नॉलेज एक ऐसे टाइम में आ रहा है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही है, तो संस्कृत भाषा के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है जो ज्ञान से भरपूर है, तो वो नॉलेज भी जा रहा है, उसमें जो आपके पास ओपिनियंस है वो जा रहे हैं, आपके पास व्यूज जा रहे हैं. राइट, अब इंग्लिश में तो कहीं ये सब लिखा हुआ नहीं है. So English as a common language in India has been acting as a threat by connecting the multilingualistic lingual Indians since the time of the British Raj. While communication in English is not much of a problem in the cities, the language becomes an impediment in the remote areas. So यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं राइटर कि अगर हम इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें कि यस आज के टाइम पे इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ डिमांड ऑन अ ग्लोबल लेवल, तो ये शहरों में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है वो सीख रहे हैं.
बट जो रिमोट एरिया से, जो गांव वाले एरिया से, वहां ये प्रॉब्लम है। इसके आप एक क्वेश्चन उठ के आता है इस ट्रेंड को देख के, that why cannot all the people in the world speak in the same language? क्या पूरी दुनिया एक भाषा नहीं बोल सकती है? कितना इजी हो जाएगा कि अगर पूरी दुनिया एक भाषा सीख जाए तो सब एकजुट होके यूनिटी में आके कॉमन ह्यूमन फोर्स की तरह काम कर पाएंगे। फिर यहाँ पे एक राइटर कह रहा है कि फोरकास्ट देते हैं लैंग्वेज एक्सटिंक्शन का, कि कम से कम एक एस्टिमेशन देखें तो 7,000 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस आर स्पोकन एज अ मदर टंग अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन ये जो 7,000 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है, दीज आर श्रिंकिंग रैपिडली। अगर एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल के तौर पे बात करते हैं तो कम से कम 40% ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो कि 35,000 स्पीकर से भी कम है, विद इन 100 years एक्सटिंक्ट। बाय एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि वो अब बोली नहीं जा रही है एज अ मदर टंग और एज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज। इन एसेंस डाइवर्सिटी जो है लैंग्वेज की वो श्रिंक हो रही है। मदर टंग ऑफ अबाउट हाफ द पीपल इन द वर्ल्ड बिलोंग टू अ पूल ऑफ 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस। टुडे इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। So the shrinking in the diversity of the language and the extinction are also related to the migration of people to the countries which have a common language. अब यहाँ पे माइग्रेशन का भी फंडा है। देखो ऐसे समझो पूरी इंडिया में, आप ग्लोब को छोड़ो, वर्ल्ड को छोड़ो एक बार के लिए, इंडिया में हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो अगर जितने भी आईआईटीज है, क्या वहां पे रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती है? नहीं। इफ यू टॉक अबाउट द गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, क्या वहां रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है? नहीं। चलो कॉलेज हो गया, आप जॉब के लिए जा रहे हो, व्हाट इज आईटी सेक्टर का हब? बैंगलोर। क्या वहां पे आप रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हो? नहीं। द स्टेट जो है वहां की, अगर आप कर्नाटक स्टेट की बात करो तो लोकल विल बी स्पीकिंग, बट आधी दुनिया जो वहां बाहर से आई है, क्या वो वहां पे अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल पा रहे हैं? नहीं। सो दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंग्लिश, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ कॉमन लैंग्वेज। तो यहाँ से माइग्रेशन का पॉइंट जो है राइटर पॉइंट आउट कर रहा है, दैट व्हेन पीपल माइग्रेट देयर इज अ प्रेशर टू शिफ्ट to the dominant language spoken in the country where they live in order to capitalize on the social and economic advantages offered by a new place. In the process, the first generation migrant become bilingual, फिर वो अपनी लैंग्वेज को भूल जाते हैं और कहीं पे उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। और द लैंग्वेज इंडेक्स जो है, ये भी एक डेटा है, उसको आप देख सकते हो कि जो इंडेक्स है ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी which was introduced to quantitatively understand the trend over past 30 years in the number of mother tongue speakers of the world's language is measured to cause the decline of the language, जिसमें 0 to 1 का रेंज होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पुअर परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया का देखा गया है। सो द सिचुएशन इन इंडिया क्या है और क्या स्ट्रेटेजी आपके पास यहाँ पे देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन 2018, 42 languages are heading towards extinction in the India। एक रिपोर्ट की माने जो कि यूनेस्को द्वारा रिलीज हुई थी 2018 में, कम से कम 42 लैंग्वेजेस ऐसी है जो कि एक्सटेंट हो चुकी है। दे वर स्पोकन बाय लेस देन 10,000 पीपल। According to the norms set by UNESCO, any language spoken by only 10,000 people is potentially endangered. Most dying languages are from the indigenous tribal groups spread across the India. Different languages can be compared to a distinct species in the linguisphere। तो ये पूरा कल्चर को यहाँ पे राइटर जो है आपका लिंक कर रहा है। आप सोच के देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बात करती हूँ, दे हैव देयर वेरी ब्यूटीफुल डिस्टिंक्ट कल्चर, their language, their costume, their festivals, everything is beautiful out of there, right? But अगर या तो आप उनकी एरिया को डेवलप करवाओ, नहीं करवाओगी तो वहां से अगर तू पढ़ लिख गया और उसको जॉब मिल गई बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, तो वो अपनी लैंग्वेज बोलेगा? यहाँ पे नहीं बोलेगा, राइट? तो इस तरह से लैंग्वेज जो है एक्सटिंक्ट हो रही है। सोच के देखो इस पे, राइट डाउन ऐसे काइंड ऑफ थिंग ऑन दिस एंड यू विल डेफिनेटली फील द कंसर्न कि लैंग्वेज एक्सटिंक्शन जो है इट्स अ सीरियस कंसर्न। Coming to the last topic, that is finding the Seoul in the Indo-Pacific। ये बहुत ही छोटा सा एक डिस्कशन है, ठीक है? 3 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया,
ये तीनों कंट्रीज ने एक नई शुरुआत करी है क्या? दे हैव मेड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप with respect to the protection of Indo-Pacific region. I'm sorry. अभी इंडो पैसिफिक डिटेल में क्या है जानना है तो आप कमेंट में लिखिए, हम अलग जो एक सेपरेट वीडियो बना दें। बट अभी हमारा फोकस क्या है, दैट देयर आर थ्री कंट्रीज, यूएस इज देयर, देन जापान इज देयर। आपके पास एक अलायंस या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बनाई है, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडो पैसिफिक। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ये जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है प्लस जो इंडिया है, हम दोनों के यानी इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसको पूरे 50 साल पूरे होने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो दैट द हिस्टोरिक कैंप डेविड समिट इन अगस्त दिस ईयर among the leaders of United States, Japan, Republic of Korea marks a new beginning of strategic partnership among the three traditional allies. So as India, Republic of Korea commemorate the 50th year of the diplomatic relations. तो ये जो summit सियोल के लिए, तब इस पूरे दौर में हमारा फोकस है इंडिया के लिए कि इंडिया के लिए कैसे सिग्निफिकेंस रहेगा। पहला पॉइंट कि one of the most significant development in the region has been South Korea Japan US trilateral meeting जो है यहाँ पे हुआ है। It indicates much needed repair। देखो पहले यहाँ पे जो सियोल है जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कैपिटल है, और जापान यानी टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल, के रिलेशंस पहले अच्छे नहीं थे। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि इनके रिलेशंस में आपके पास एक रिपेयर दिख रहा है, एक इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये जो पॉजिटिव बायलेटरल डेवलपमेंट हुआ है, इसमें इस पूरी रीजनल सिक्योरिटी को एक नई पहचान मिलेगी। दिस कुड बी अलोंग विद ऑकस। इससे पहले देखो यूएस ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बनाता रहता है, छोटे छोटे ग्रुपिंग बनाता रहता है, तो ऑकस था, क्वाड था, तो उसी के पैरेलल आप इसको भी सोच सकते हो टू प्रोटेक्ट द इंडो पैसिफिक। दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया a new strategic direction in the Indo-Pacific with improved relations with the Tokyo। फिर यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सियोल का ट्रेडिशनल जो अप्रोच है कि वो चाइना को, देखो एक आपके पास जो कोरिया है, वहां पे सियोल का एक बहुत ही हमेशा से ये फंडा रहा है कि वो चाइना को पोक नहीं करना चाहता, ओफेंड नहीं करना चाहता किसी भी हालत में। बट अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो अलायंस है उसके साथ चाइना जो है उसको ओफेंड करने के लिए सियोल रेडी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडो पैसिफिक। तो कहीं ना कहीं काउंटर चाइना के फॉर्म में भी आप इस चीज को देख सकते हो। दूसरा फोर्थ नंबर पे, दैट रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है इट इज डिजायर्ड कीन टू जॉइन द क्वाड एज वेल। सियोल ने काफी बार बोला कि हम कुछ ग्रुपिंग में ले लीजिए। तो ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, इसका सिग्निफिकेंस आप डिफेंस या न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी देख सकते हो। जो फोकस एरिया है वो न्यूक्लियस पे रहेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वहां पे आपके पास रहने वाले। सो आपको ये चीजें समझ आ रही है? अगर कोई वैल्यूबल फीडबैक है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज लाइक अवर चैनल, शेयर अवर वीडियोस, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।